You take the amplitude when the half the semi-diameter of the sun is where? Above the horizon, below? Sir, above the horizon. Above the horizon. Okay. So, and in the evening, what time you take? Somebody said twilight. Is it twilight at that time or no? No. Who said twilight? Somebody said twilight. Tell me if there is any doubt, I'll clear the doubt. Don't worry, nothing to feel bad about. We are here to learn. So the concept should be clear. Twilight is, gentlemen, I will be taking the topic later today. Twilight starts when the sun goes down. When you cannot see the sun before sunrise or after sunset, that is twilight. If you are seeing the sun, that is day. It is either day or night, but between day and night there is twilight. We will study that one today. So my question was, when do we take the amplitude? We take amplitude when the body is at the theoretical sunrise or theoretical sunset. We will talk only of sun because taking amplitude of planet or a star is almost impossible because the horizon always remains a little hazy, so you cannot see when they rise or set. Only when they are sufficiently higher up, then you can see them properly. But sun is so bright, we see the sun always. What does theoretical rising or setting mean? Theoretical rising or setting means that the sun is on the rational horizon. Rational horizon means the center of the earth and the center of the sun are in one line. When the center of the sun and center of the earth are in one line, it means the sun is on the rational horizon of the observer, and that is the time when you should be taking the amplitude. So why do we take the amplitude when the sun is half a diameter, lower limb is half a diameter above the horizon? Can anyone tell me? Sir, due to refraction, we see the sun at that time, but actually it is that time the sun is actually just touching the horizon. Very good. We see the sun above the horizon because of refraction. Refraction is maximum when the body is on the horizon. We will discuss all that later when we do section at altitudes. So it appears that the sun is above, but actually it is below. It is on the rational horizon. That calculation is given in this book. Later on, we will see. So if the body is on the rational horizon, if the body is on the rational horizon, what is the altitude of the body? So 0. 0, very good. If the sun is on the rational horizon, the altitude of the body is 0, which means what is the zenith distance? 90. 90 degree. Zx is equal to 90 degrees. So the side is 90 degrees. The side is 90 degrees. When the side or the angle of a spherical triangle becomes 90, the calculation becomes a little easier. We apply the Napier's rule.
We will study that Napier's rule later. Now, in this case, the body's declination is north. If the declination of the body is 0, let us say the body is here. Declination is 0, body is here or here. It will rise or set east or west. Then how much is Px? So still 90. Here Px is also 90. So again we are getting a chance of Napier's rule. we are getting a chance of one side getting 90 degrees. There will be other options when an angle can be 90. When can angle be 90? I am keeping this side clear so that we don't get confused. Other options I am showing on the left side. If the body is bearing east or west, this body, then what chance we got? Angle Z to be 90. Angle Z is 90. Yes or no? Yes, sir. If the body is bearing east or west, angle Z becomes 90. So like this, we have to figure out various options when we are solving the PZX triangle. Sometimes it is given directly. Sometimes you have to understand the numerical. Okay. Because we are at it, so we are exploring various options. Coming back to amplitude, you told me that you take the amplitude of a body of the sun when it is rising or setting, and very rightly you said we take it half a diameter when the lower limb is above the horizon, and somebody very intelligently also said that because of refraction it is higher up, but actually it is on the rational horizon, which means the center of the earth and the center of the sun are in one line. When the altitude is 0 at the theoretical rising or setting, the zenith distance is maximum, so Zx is equal to 90. And this becomes our PZX triangle. I will not draw the PZX triangle over there. Let it be clear for our amplitude. You can see the PZX triangle here. How do I define amplitude now? Azimuth, you know what it is? Let us say the declination of this sun at this time is 10 degrees north. Declination is equal to 10 degrees north. What will be the rising bearing? So 80 degrees. Bearing will be 080 degrees. If I ask someone what is the azimuth at that time, what will you say? 080. Azimuth you have to give it in the quadrantal. The north 80 The degrees. north North 80 80 east. North 80 degrees east. East. Very good. So azimuth is north 80 east, declination 10 north. Azimuth is the arc of the rational horizon or angle at the zenith between the observer's meridian and the vertical circle passing through the body. We come to amplitude now. When we say amplitude, strictly speaking, amplitude is east 10 degrees north.
east 10 degrees north. For compass error, we say take amplitude because you are actually taking the amplitude, you take a bearing. But strictly speaking, amplitude is measured or mentioned as east 10 north. So the definition of amplitude is the arc of the rational horizon or angle at the zenith. Between the prime vertical of the observer and the vertical circle passing through the body at the theoretical rising or setting of the body. In both cases, azimuth or amplitude, it is the arc of the rational horizon or angle at the zenith. But in the case of zenith, it was between the observer's meridian and the vertical circle through the body. In this case, it is the angle between the prime vertical and the vertical circle through the body at the time of theoretical rising or setting of the body. Is that clear, gentlemen, or any doubt? The same body when it is setting at this point, same body when it is setting at this point x dash, what will be the amplitude? West 10 degree north. West 10 degree north. Rising west 10 degree north while setting. Very good. So if there would have been a body with a south declination, then what do we say? At this point, what is the amplitude? Let us say again it is 15 degrees or so. East 15 degrees south. East 15 degrees south or west 15 degrees south. Yes. So in the case of azimuth, first you write north and south, then east or west. And in the case of amplitude, first you write east or west, and then you write north or south. But in the definition, don't forget to write at the theoretical rising or setting of the body. Is it clear, gentlemen? Any doubt anyone has? No, sir. Very good. So azimuth and amplitude theoretically we are clear. I have also told you. Sir, Yeah. so can you show the projection of amplitude and azimuth on the celestial sphere? On the celestial sphere. Yes, sir. I think I had shown you some diagram earlier when we were doing that video. But okay, let me try and show you another figure. I'll switch off the camera and can you see this picture on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Here you have a slight 3D view. The shaded portion in the center is the rational horizon. Observer is in the center. Above him is the zenith. There's a north direction mentioned. The others you can figure out. The south is towards that sea of the celestial meridian. East is towards you and west is away from you. So the azimuth is very clearly mentioned and the altitude is also mentioned. Z to star is the zenith distance.
And the other angle which is not shown, I will see if I can find another picture. Where my cursor is, you can see this. Yes, sir. This is 90 degree from north, so Sir. this is the east point. So from the cursor to this one is the amplitude at the time of theoretical rising. That means the body should have been here. Then only we measure the amplitude. Is it clear now? Sir, if the body is at horizon, now amplitude equal to 90 minus azimuth ले सकते हैं. If you take the azimuth at that time, see azimuth we can take at any time. The body may be high above above the horizon, or azimuth you can take any time. But when we say amplitude, that is only at rising or setting. Yes? Or you have any doubt? Yes, sir. एजिमथ दिन में तुम कभी भी ले लो, बॉडी मेरिडियन पे है, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी. एक्चुअली देखा जाए तो एम्पलीट्यूड भी एजिमथ है अगर तुम 90 माइनस कर दो उस समय, क्योंकि बेरिंग तो ले रहे हो. लेकिन जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वो तुम एजिमथ में नहीं अप्लाई कर सकते. साइन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, फॉर्मूला मालूम है किसी को? Sine deck upon coslet. Yeah, that formula you cannot use because that formula is applicable only when zx is 90. वो जो डायग्राम में पहले तुमको बता रहा था, Yes, जब sir. Yes, zx sir. जब zx 90 होगा तभी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज तुम नॉर्मल फॉर्मूला से करते रहो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा. That is not the point. I will actually this particular PPT I wanted to show you later, but if you want I can just quickly run through this to show you what it is. ये जब हम आगे करेंगे कैलकुलेशन तब दिखाने का था मेरे को. Amplitude definition. Angle at the observer zenith of arc direction horizon connecting observer's prime vertical and the vertical circle through the body at theoretical rising or setting. You can see the slide, all of you. दिखाई दे रहा स्लाइड? या तो ये एम्पलीट्यूड है ईस्ट वेस्ट से ऊपर या नीचे, नॉर्थ और साउथ. Amplitude takes the same name as the declination. Here you can see the azimuth and amplitude both combined. दोनों मिला के 90 होगा. नेपियर रूल का डायग्राम बना हुआ है राइट साइड में, विल कम टू दैट लेटर. सो आई डिडंट वांट टू शो दिस एंड कंफ्यूज यू बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में है. तो जब एक 90 हो जाता है एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट, ट्रू ऑल्टीट्यूड इज 0, ज़ेनिथ डिस्टेंस इज 90, तो फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन में. यू गेट दिस फॉर्मूला टुवर्ड्स द एंड. साइन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइन डेक अपॉन इनटू सेकेंड लाइट अपॉन कॉस लाइट. Azimuth is 90 minus amplitude. What you said is correct. Sin amp is equal to sin deck into secant lat. ये फॉर्मूला हम लोग एजिमथ में नहीं यूज कर पाएंगे बिकॉज उस समय zx 90 नहीं होता. Because zx is 90, so in order to use this formula which is very simple, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वेरी इजी टू कैलकुलेट और कंपास एरर, इसीलिए एम्पलीट्यूड लिया जाता है. एजिमथ अगर लोगे तो उस समय फिर तुमको ABC टेबल वो सब करना पड़ता है. बट एम्पलीट्यूड में देखो क्या है, डेक्लिनेशन ले लिया तुमने टाइम से और लैटिट्यूड तुम्हारे पास है, तुम्हारा एरर निकल गया. यू गेट द आइडिया? यस और नो जेंटलमैन? Yes, sir. सर एग्जाम पे इसका न्यूमेरिकल आता है क्या? वार्डन, एग्जाम में सर एम्पलीट्यूड और इसका एजिमथ का तो पक्का आएगा ही आएगा. देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो लंबे क्वेश्चन है वो तुम्हारा लॉन्ग बैक क्रॉन है, इंटरसेप्ट मेथड है,
और एक्स मेरिडियन है। ये 3 तो लंबे क्वेश्चन है जो सिंगल आ जाते हैं। जो छोटे हैं वो लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड है और पोलैरिस है। 5 पोजीशन लाइन मेथड है हमारे पास। सो पोलैरिस और लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड छोटा सवाल है तो उसको ए बी कर देते हैं। और सेकंड पार्ट में एक में एम्पलीट्यूड मिल जाता है, एक में अजीमथ आ जाता है। तो ये तो आता ही आता है। पुराने पेपर्स तुम लोगों ने चेक नहीं किया किसी ने? दिस इज द थ्योरेटिकल सनराइज 1 सेमी डायमीटर अबव द होराइजन। इसमें थोड़ा एल्मनेक का भी दिया हुआ है तो नहीं, ये नहीं है। Actually, it was there in one of the pictures, so I don't remember where now. First, think of the Earth in space, different distances. This idea of the celestial sphere is very useful for about because the Earth is spinning around you and around the point overhead, and the celestial equator circles the side by 2 coordinates. Declination, like latitude or negative declinations, south. As from a 0 line. An hour is half of the sky is completely hidden. It runs from east to west through the zenith. South line of the sky through the zenith is called the meridian. At an intermediate latitude, the altitude of the celestial pole in the sky is equal to your latitude on Earth. Some stars are circumpolar and never set. It's sometimes useful to know a star. Azimuth is measured round the horizon altitude, its height above the horizon. It's useful to know a star's altitude, its height above the horizon, and in I is equal to your latitude on Earth. Some stars are circumpolar and never set. It's sometimes useful to know a star's altitude, its height above the horizon, and its इसमें azimuth तो clear है, north से लेके you go around, that is the bearing. But when we denote in the terms of north and south that I told you, azimuth, I think its दूसरे compass वीडियो में है, direction. let me check that one. Azimuth is measured round the horizon from north, but as the stars move, their altitude and azimuth constantly change. Maybe in this one you will find that one. Hello, ladies and gentlemen, and welcome back. Is the backdrop that everything appears in either the night appear to be, and we have, or it appears two-dimensionally to be surrounding us. When you look up in the sky, it doesn't matter if the sphere has a few parts that we need to take a look at. We have the azimuth direction right around here along the bottom. Right here where the dome meets, this is our horizon, this portion that goes all the way around. So if you were to go to the beach and look straight out into the water, and where the sky meets the land, that's your horizon. The zenith is the point directly. And we also have our above the horizon. If we make an angle with the ground, with looking at the horizon, and then straight up, anything in between that, where in between that angle, we're looking at about degrees. So as we see this in the bottom, measured in degrees. North is 0 degrees. This, so from north, south, that's also east, and then we correction in degrees. And that's pretty much it. That's the end of the celestial sphere. Land, that's your horizon. Okay, let me try and explain to you in this figure. The brown one where the observer is standing is the rational horizon.
There is a north, south, east, west point. There is a body in the southerly direction. एक altitude पे है. You can see this my cursor over here. Altitude body का 60 degrees है. South of the observer. अगर ये बॉडी जब यहाँ पर इस समय तो ऑल्टीट्यूड 60 है, बॉडी का एजीमथ क्या बता सकते हो? साउथ डायरेक्शन से मेजर करूंगा तो यहाँ तक एजीमथ है. एजीमथ आई कैन मेजर एनी टाइम, बट अगर मेरे को इसका एम्पलीट्यूड मेजर करना होता है, इट वुड हैव बीन ओनली एट द टाइम व्हेन द बॉडी वाज हियर एट द टाइम ऑफ थ्योरेटिकल सनराइज. तो इसमें कैन यू इमेजिन द एम्पलीट्यूड ईस्ट से लेके ये एंगल नीचे जहां मेरा कर्सर है. Sir, we'll measure the azimuth from the south in this one. देखो, बेरिंग तो नॉर्थ से लोगे, कंपास तो तुम्हारा हमेशा 0 से पड़ता है ना. Yes, और नो? यस. मैंने बोला जब एजीमथ का नेमिंग करोगे, जब वर्ड एजीमथ यूज होता है ना, कोई बोलेगा एजीमथ क्या है बताओ, देन यू हैव टू से साउथ इतना डिग्रीज ईस्ट. एजीमथ का नेमिंग जब कंपास एरर निकालते हो एबीसी टेबल से या जो नेमिंग मेथड से करके फॉर्मूला से, तो उसमें तुम नॉर्थ और साउथ का नेमिंग अगर गलत दोगे तो तुम्हारा आंसर ठीक नहीं आएगा, गलत आ जाएगा. Yes, sir. समझ रहे हो? जब नेमिंग टेक्निक से करते हो नॉर्थ साउथ से, तब तो तुम्हारा बेरिंग यूज नहीं करते ना, 3 फिगर नोटेशन यूज नहीं करते हो या करते हो? वो वाला उसमें यूज नहीं होगा. तो अगर एजीमथ बोले, हम लोग लूजली एजीमथ बेरिंग को बोल देते हैं, बट टेक्निकली अगर देखो, व्हेन यू से एजीमथ इट हैज टू बी मेजर्ड आइदर फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन. अगर ई और डब्ल्यू के ऊपर है तो हम नॉर्थ से गिनेंगे, नॉर्थ इतना, वेस्ट नॉर्थ इतना, ईस्ट. और अगर प्राइम वर्टिकल के नीचे है तो हम साउथ से गिनेंगे, साउथ इतना वेस्ट, साउथ इतना ईस्ट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. प्राइम वर्टिकल के ऊपर होगा तो नॉर्थ से मेजर करो, प्राइम वर्टिकल के नीचे होगा तो साउथ से मेजर करो. सिमिलरली जो एम्पलीट्यूड है वो अगर तुम्हारे ईस्टर्न साइड में है तो ईस्ट से करोगे, राइजिंग अगर होगा तो ईस्ट इतना डिग्री नॉर्थ या साउथ, और सेटिंग अगर होगा तो वेस्ट इतना डिग्री नॉर्थ या साउथ. किसने पूछा था एक क्वेश्चन? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? सेलेस्टियल स्फीयर में जो एम्पलीट्यूड देखना चाह रहा था. Yes, sir. ठीक है, समझ हो गया? ओके, नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. I will explain to you about twilight. What is twilight? हम लोग कई बार डे नाइट, सनराइज, सनसेट वो थोड़ा लूजली यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली एज सर पर इसके द क्वेश्चन से करेंगे PZX ट्रायंगल को. पार्डन. तो फिर क्वेश्चन से करेंगे PZX ट्रायंगल को. हाँ करेंगे, वो फिर जब प्रैक्टिकल नेविगेशन करेंगे तब करते हैं, ओके. या अभी करना चाहते हो कोई एक? लेट मी सी अगर बुक में कुछ है या नहीं अभी. एक्चुअली PZX ट्रायंगल के जो क्वेश्चन है ना वो मान लो ये होराइजन है, मान लो ये होराइजन है और सन इधर है. अभी सनराइज हुआ नहीं है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. इस केस में हम बोलेंगे सनराइज हुआ नहीं है, इस केस में हम बोलेंगे सनसेट हो गया है. When the sun is below the horizon, इस केस में अभी सनराइज स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे थोड़ा सा सन दिखेगा हम बोलेंगे सनराइज हो गया.
और जैसे थोड़ा सा भी सन दिख रहा होगा हम बोलेंगे अभी सनसेट नहीं हुआ. So when the sun is visible above the horizon, it is day, D-A-Y, day. And when the sun is below the horizon, उसको क्या बोलेंगे? Twilight. Night. नाइट बोलेंगे. ठीक है. लेकिन बिटवीन डे एंड नाइट रोशनी रहती है कि नहीं रहती है? Yes, sir. बिटवीन डे एंड नाइट रोशनी तो रहती है. तुम लोगों ने देखा होगा सन चाहे नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हारे ऑब्जर्वर के यहां से व्यू से छुप गया है, बट सन को यहां पर तो लाइट जाने में कोई रोक नहीं रहा है. और इधर अगर कोई क्लाउड्स हैं, तुमने नोट किया क्लाउड कैसे दिखता, क्या होता क्लाउड को? रेड कलर का दिखता है सर. नीचे अंधेरा हो गया है लेकिन ऊपर स्काई देखो तो थोड़ा थोड़ा ब्लू दिखता है. क्लाउड रेड दिखते हैं, क्लाउड व्हाइट भी दिखते हैं बाद में, कभी फिर डार्क हो जाते हैं बाद में. कलर चेंज होते हुए देखा क्लाउड का? दैट इज बिकॉज द सनलाइट इज स्टिल हिटिंग द क्लाउड. वो बैक स्कैटर होके वापस आके अर्थ को इल्यूमिनेट करता है. सो ट्वाइलाइट इज दैट पीरियड बिटवीन डे एंड नाइट when there is still some brightness, some light is still there. ऑफिशियली सनराइज हुआ नहीं है या सनसेट हो गया है, बट नाइट नहीं हुआ. देयर इज स्टिल सम लाइट. जो भोर और सांझ बोलते हैं हम लोग हिंदी में. सांझ हो गई है, सूरज डूब गया, सांझ हो गई, चलो घर आ जाओ. भोर के टाइम उठो, अच्छा रहता है. सो दैट इज ट्वाइलाइट, जब रोशनी है बट सूरज नहीं दिख रहा है अभी. ऑफिशियली सनराइज कब होगा? जब upper limb of the sun is visible above the horizon. And officially sunset कब होगा? When the upper limb is gone below the horizon. Yes, ये sir. सब टाइमिंग कहाँ पर दिया हुआ है सनराइज और सनसेट का? Almanac. नॉटिकल एल्मेनेक में दिया हुआ है. और सनराइज और सनसेट के बगल में किस चीज का टाइम लिखा होता है? Sir, twilight time. ट्वाइलाइट टाइम दिया है. हाँ, अगर एल्मेनेक है तो सामने पेज निकाल लो. मैंने तुमको बोला भी था कि मेरी क्लास में स्पेशली एल्मेनेक हमेशा साथ रखा करो, कभी भी हम लोग को रेफर करने को ये होता. सो अगर है जरा खोल के मेरे को बताओ उसमें क्या डिफरेंस तुम नोट कर रहे हो. ट्वाइलाइट का टाइम दो जगह दिया है, ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है. यस सर. उसमें क्या डिफरेंस तुम नोट कर रहे हो? सर ऊपर वाला ट्वाइलाइट के सनराइज, टाइम, हाँ नीचे वाला Sunrise, सनसेट. sunset. क्या है बोलो? सर ऊपर वाला सनराइज का है और नीचे वाला सनसेट का. वाला सनराइज का है, नीचे वाला सनसेट का. वेरी गुड. और क्या डिफरेंस नोट कर रहे हो? ये तुमने ठीक बोला. यू कैन सी द स्क्रीन. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑल्सो. कैमरा बंद कर दूं? यस सर. चलो कैमरा बंद कर दिया. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जिसके पास एल्मेनेक नहीं है यहाँ देख लो. सन मून के राइट साइड में लिखा है ट्वाइलाइट, सनराइज, मूनराइज. ठीक है. और जब मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ
नीचे भी लिखा है सनसेट, ट्वाइलाइट, मूनसेट। हाँ, ऊपर और नीचे का ट्वाइलाइट में डिफरेंस क्या है? सर ऊपर वाले में नॉटिकल सिविल से कम है, नीचे वाले में नॉटिकल सिविल से ज्यादा है। ओके, ऊपर वाले में नीचे जो टाइम सर, है, नीचे वाले में सर टाइम ही सर, नीचे वाले में टाइम बढ़ रहा है सर, हाँ इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर वाले में सर टाइम इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाले में डिक्रीज हो रहा है सर। हाँ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का क्या है, ऊपर में पहले ट्वाइलाइट है, बाद में सनराइज है। ऊपर में पहले ट्वाइलाइट है, बाद में सनराइज है, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, सनराइज हो गया तो ट्वाइलाइट खत्म हो गया। पहले ट्वाइलाइट है, बाद में सनराइज है, और नीचे पहले सनसेट है, बाद में ट्वाइलाइट है, और नीचे पहले सिविल आता है, फिर नॉटिकल, ऊपर पहले नॉटिकल फिर सिविल। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुक में लिखा है, मैं बता देता हूं। इस पेज में देखोगे तो नॉटिकल ट्वाइलाइट का टाइम 2:58 है और सिविल का टाइम है 4:30। है राइट? सबसे ऊपर लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, बट ऊपर का लाइन देख लो, और सनराइज 5:38। ठीक है, यस और नो? 72 डिग्रीज लैटिट्यूड में क्या दिया नॉटिकल ट्वाइलाइट? 2:58 दिया ना? यस और नो? यस सर। हाँ। सनराइज के पहले का टाइम जो है ये बिगिनिंग ऑफ द ट्वाइलाइट टाइम है, बिगिनिंग, यानी 2:58 को नॉटिकल स्टार्ट होता है और 4:30 को नॉटिकल ट्वाइलाइट खत्म होता है। ये नॉटिकल सिविल क्या है मैं अभी 2 मिनट में समझाऊंगा, बट टेबल सामने है तो मैं बता रहा हूँ। 2:58 को नॉटिकल स्टार्ट होता है और 4:30 को खत्म होता है, यानी नॉटिकल टाइम, नॉटिकल ट्वाइलाइट का टाइमिंग अगर कोई पूछेगा, इट इज बिटवीन 2:58 एंड 4:30। इतना देर नॉटिकल ट्वाइलाइट रहेगा। सिविल ट्वाइलाइट 4:30 स्टार्ट होगा और 5:38 खत्म होगा, यानी 1 घंटा 8 मिनट, और 5:38 को सनराइज हो जाएगा। तो सनराइज के पहले का जो ट्वाइलाइट है, मॉर्निंग वाला, दैट इज द टाइम गिवन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ट्वाइलाइट टाइम, बिगिनिंग। और नीचे का जो टाइम दिया है ये एंडिंग ऑफ द ट्वाइलाइट टाइम है। एंडिंग का क्या मतलब है? सनसेट 1805 को खत्म होगा और सिविल ट्वाइलाइट स्टार्ट होगा 1805 को, और सिविल ट्वाइलाइट खत्म होगा 1913 को। यानी सिविल ट्वाइलाइट का कोई टाइमिंग अगर पूछेगा तो तुम बोलोगे 1805 से लेकर 1913 तक, और नॉटिकल ट्वाइलाइट का टाइमिंग पूछूंगा तो क्या बोलोगे? 1913 से शुरू होगा, 2043 तक। 1913 से शुरू होगा और 2043 में खत्म होगा। तो ऊपर का जो टाइमिंग है वो बिगिनिंग ऑफ द ट्वाइलाइट का टाइम है, सनराइज के पहले, और सनसेट के बाद वाला जो दिया है दैट इज एंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो कब स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है ये आप लोग समझ गए। इस पॉइंट पे एक चीज तुमको मैं और बता देता हूँ, सिंस वी आर हियर, 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में नॉटिकल ट्वाइलाइट कितने घंटे का है? कितने घंटे और कितने मिनट का बताओ? 1.5 hours। 1 hour 30 मिनट। वेरी गुड। 1913 से लेके 2043 तक 1 hour 30 मिनट। 60 डिग्री लैटिट्यूड में कितना है नॉटिकल ट्वाइलाइट का टाइम? 50 मिनट। 50 मिनट। कितना फर्क पड़ गया देखो, 12 डिग्री लैटिट्यूड में ट्वाइलाइट का टाइम में कितना फर्क पड़ गया। 1 घंटा 30 मिनट से 50 मिनट, 40 मिनट कम। नीचे आ जाओ थोड़ा,
40 डिग्री में कितना है बताओ? So 32 minutes. 32 मिनट्स। और 0 डिग्री लैटिट्यूड में है 24 मिनट। इसका क्या मतलब हो रहा है कि इक्वेटर के साइड में ट्वाइलाइट का टाइम कम है और जैसे जैसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जाते हैं ट्वाइलाइट ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। ये भी एक थ्योरी है, एक फंडा है ट्वाइलाइट का। क्यों है वो मैं डायग्राम में तुमको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। हालांकि शायद तुम्हारा डायरेक्ट इंटरेस्ट का ना हो, बट फेज़ 1 में ये क्वेश्चन आते हैं तो नॉलेज के लिए तुमको थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो ये समझ गए हो टाइम कैसा देखना है? ट्वाइलाइट का टाइम मालूम पड़ गया कैसा देखते हैं? Yes. लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, कहाँ से कहाँ मेजर करना है, बिगिनिंग कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, ये तुमको मालूम पड़ गया है ट्वाइलाइट का टाइम। बीच में लैटिट्यूड अगर है तो इंटरपोलेट करोगे, ठीक है? बीच में अगर है तो इंटरपोलेट करोगे। अगर कोई बोलेगा 25 डिग्री नॉर्थ में क्या है, तो सिविल या नॉटिकल स्टार्ट कब होता है 25 में, बताओ जरा? नॉटिकल कितने बजे स्टार्ट होता है 25 डिग्री लैटिट्यूड में? 20 और 30 के बीच इंटरपोलेट कर लो। 30 में कितना है 1821, So 18 hours 19.5 minutes. 18 आवर्स 19.5 मिनट, 18 आवर्स 19 मिनट 30 सेकेंड में नॉटिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा? 18 आवर 46 minutes. 46 मिनट। तो लैटिट्यूड के लिए इंटरपोलेट करना पड़ेगा ट्वाइलाइट का टाइम, ठीक है? एवरीबडी गॉट एन आइडिया हाउ टू रीड द टाइमिंग्स? डिफरेंस मालूम Yes. पड़ गया ऊपर के टेबल और नीचे में क्या है? ऊपर में बिगिनिंग ऑफ द टाइम है, नीचे में एंडिंग टाइम दिया है। सनराइज सनसेट को भी कैसे पढ़ना है सबको मालूम पड़ गया, ठीक है? नाउ आई विल टेक यू टू द बोर्ड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस सिविल एंड नॉटिकल ट्वाइलाइट। Can you all see the board now? बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। सो ये होराइजन है। हमने बोला सन नीचे हो गया तो सेट हो गया। सेंटर ऑफ द सन, सेंटर ऑफ द अर्थ, रैशनल होराइजन। टेक द रैशनल होराइजन। रैशनल होराइजन से जब सन का सेंटर छह डिग्री बिलो द होराइजन होगा, 6 डिग्री बिलो रैशनल होराइजन वी आर सिविल ट्वाइलाइट। 6 से 12 डिग्री के बीच का जो पीरियड है बिलो द रैशनल होराइजन वी आर नॉटिकल ट्वाइलाइट। 12 से 18 डिग्री सेंटर ऑफ द सन बिलो द रैशनल होराइजन एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट।
इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर तुम स्टार साइट लोगे, किसी ने कभी स्टार साइट लिया चीफ ऑफिसर के साथ, कुछ बात हुआ कभी? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कौन सा टाइम लेते हो, क्या बात होता? टाइम कैसे मालूम पड़ता? चीफ ऑफिसर ने कभी टाइम कैलकुलेट करवाया? कितने बजे लेना साइट? देखो, जब सिविल टॉयलेट होता है ना, जब सिविल टॉयलेट होता है तो ब्राइटनेस ज्यादा होता है. Horizon is very clearly visible, but the stars are not visible. पहले से चीफ ऑफिसर सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट करवा के रख लेता है, उसमें सेटिंग करके ढूंढता रहता है. देखते हो, स्कैन करता ना होराइजन, घुमाता रहता है कि स्टार दिखा कि नहीं दिखा. तो सिविल टॉयलेट टाइम में क्या होता है कि होराइजन क्लियर है लेकिन स्काई अभी भी ब्राइट है, स्टार दिखता नहीं है, तो यू कैन नॉट टेक द स्टार साइट. नॉटिकल टॉयलेट है उसके बाद, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल. एस्ट्रोनॉमिकल में क्या प्रॉब्लम है? स्काई बहुत डार्क हो गया है, स्टार अच्छा से दिख रहा है लेकिन होराइजन नहीं दिख रहा ठीक से. तो एस्ट्रोनॉमिकल टॉयलेट भी सूटेबल नहीं है. सिविल में होराइजन दिख रहा था, स्टार नहीं दिख रहा था. एस्ट्रोनॉमिकल में स्टार दिख रहा है लेकिन होराइजन नहीं दिख रहा है. नॉटिकल टॉयलेट के जो टाइम है वो स्टार साइट के लिए सूटेबल है. इसमें स्टार भी दिखता है और होराइजन भी ठीक से दिखता है, बीच का टाइम. सो वी प्रेफर टू टेक स्टार साइट ड्यूरिंग द नॉटिकल टॉयलेट टाइम. दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट द सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ द स्टार, स्टार फाइंडर से वो सब निकाल के रखते हैं हम लोग, एजीमथ वगैरह, फॉर द नॉटिकल टॉयलेट टाइम. ये इसकी कैलकुलेशन और इसके न्यूमेरिकल वो फेज 1 के हैं, वो आगे हैं. पहले से कैसे निकाल के रखना, कौन सा स्टार है, अननोन स्टार, हाउ टू आइडेंटिफाई एन अननोन स्टार, ये सब बाद का बात है. तुम्हारे लिए टॉयलेट जानना जरूरी है, कितने टाइप का टॉयलेट है, विच टॉयलेट इज सूटेबल. इसका डायग्राम बना के अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई आता तो यू शुड बी एबल टू राइट. यू शुड बी एबल टू रीड एंड कैलकुलेट द टॉयलेट टाइम ऑल्सो, हाउ टू फाइंड इट फ्रॉम द एल्मनाक. तो मैं कुछ न्यूमेरिकल देख के रखूँगा कल के लिए, हाउ टू फाइंड द टॉयलेट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर कोई टाइम लैटिट्यूड के लिए. एंड अगर कोई PZX ट्रायंगल का थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन अगर हुआ तो देख लेंगे. अदरवाइज आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुमारो, आई वुड लाइक टू स्टार्ट टाइम, TIME टाइम. वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. So I would suggest today you go and read about the PZX triangle, about amplitude, about azimuth, about twilight. जो हमने पढ़ा है उसको जाके पढ़ लोगे तो अच्छा रिवीजन और तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाएगा. Yes, anyone asking any question? No, sir. Thank you, sir.